Honorable Mr. Justice Sanjeev Sachdeva, Honorable Administrative Judge High Court of Madhya Pradesh and Executive Chairman Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Honorable Mr. Justice Vivek Rusia, Administrative Judge High Court of Madhya Pradesh, Bench at Indore, Honorable Mr. Justice Vivek Agrawal, Judge High Court of Madhya Pradesh and Chairman High Court Legal Services Committee, Jabalpur, Honorable Companion Judges High Court of Madhya Pradesh, Shri Rajiv Virmani, Senior Advocate Supreme Court of India, Shri Alok Avasthi, Principal District and Sessions Judge, Jabalpur, Shri Ratnesh Chandra Singh Bisen, Member Secretary, MP State Legal Services Authority, Shri Krishnamurti Mishra, Director, MP State Judicial Academy and Officers of State Judicial Academy, Shri Vaibhav Mandloi, Principal Registrar Vigilance, High Court of Madhya Pradesh and Officers of Registry, Additional Advocate General, Shri Pushpendra Yadav, Deputy Solicitor General for Union of India, Shri R.K. Singh Saini, Vice Chairman, State Bar Council of Madhya Pradesh, Shri Dhanya Kumar Jain, President, Madhya Pradesh High Court Bar Association, Jabalpur, Shri Sanjay Agarwal, Secretary, High Court Advocate Bar Association, Jabalpur, Shri Aditya Adhikari, General Secretary, Senior Advocates Council, Jabalpur, Senior Counsels, Advocates, panel lawyers empaneled with various legal services institutions and legal aid defense councils, judges from district judiciary from across the state who have joined us both physically and through virtual mode via the YouTube link. Ladies and gentlemen, Namaskar and a very good evening to one and all. I, Anirudh Jain, Deputy Secretary, MP State Legal Services Authority, feel honored and privileged to welcome you all in the symposium on the art of cross-examination for advocate and panel lawyers organized under the aegis of Madhya Pradesh State Legal Services Authority. India, as a country, has always lived by the saying Atithi Devo Bhava, meaning thereby that guest is akin to God. By following this emotion, I now request Shri Ratnesh Chandra Singh Bisen, Member Secretaries, MP SLSA, to kindly welcome and felicitate my Lord Honorable Mr. Justice Sanjeev Sachdeva, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, by presenting His Lordship a sapling as the mark of our gratitude. Moving ahead, I now request Shri Krishnamurti Mishra, Director, MP State Judicial Academy, to welcome and felicitate my Lord Mr. Justice Vivek Rusia, Judge, High Court of Madhya Pradesh, by presenting His Lordship a sapling as a mark of our gratitude. Thank you, sir. I now request Shri Vaibhav Mandloi, Principal Registrar Vigilance, High Court of Madhya Pradesh, to welcome my Lord Honorable Mr. Justice Vivek Agrawal, Judge, High Court of Madhya Pradesh, by presenting a sapling. Lastly, I would again request Shri Ratnesh Chandra Singh Bisen, Member Secretary, MP SLSA, to welcome Shri Rajiv Virmani, Senior Advocate, by presenting a sapling and a memento as a mark of our respect and gratitude. Moving further, I now most humbly request Honorable Mr. Justice Vivek Rusia, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, Bench at Indore, to kindly bless and guide the gathering with His Lordship's address. Honorable Justice Sanjeev Sachdeva ji, my esteemed brother and sister judges, Shri Rajiv Virmani, Senior Advocate, Supreme Court of India, Delhi. Welcome you, sir. You will get fresh air in Jabalpur as you are coming from Delhi. Shri Alok Avasthi, Principal District and Session Judge, Jabalpur. Shri Ratnesh Chandra Singh Bisen, Member Secretary, MP State Legal Services Authority. Shri Krishnamurti Mishra, Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy and Officer of MP Judicial Academy, Shri Vaibhav Mandloi, Principal Registrar Vigilance, Additional Advocate General Shri Pushpendra Yadav, Shri Rupra,
Shri R.K. Singh Saini, Vice Chairman, State Bar Council, Shri D.K. Jain, President, MP, High Court Bar Association, Shri Sanjay Agarwal, Secretary, High Court Advocate Bar Association, Shri Adit Adhikari, General Secretary, Senior Advocates Council, Jabalpur. Senior advocates, panel lawyer, member of district judiciaries, ladies and gentlemen. As you are aware that we are assembled here in this symposium to listen Shri Virmani on this subject, art of cross examination. I am presiding division bench in criminal matter since last 4 years, and what I found that it's a dying art. Conviction sometimes, most of the time I found that the conviction of accused only because of defective cross-examination. The prosecution has not proved the case, but in cross-examination, questions were asked and the conviction is there. In cross-examination, leading questions are not permissible, but in examination in chief or in cross-examination, it is permissible. You can cross-examine, range is very wide. But cross-examination may either be constructive or destructive. Constructive approach is when the cross-examination of witness is done to highlight or to get certain facts from the witness which can help you. Another is a destructive approach where you can destroy the credibility of the witness, that he is not making a correct statement, he is not a trustworthy. You can adopt both this approach in your cross-examination, depends on the facts of the case. For effective cross-examination, you will have to prepare a case thoroughly. You should aware about the plaintiff's case, in civil matter in plaintiff's case and the defense taken in the written statement. You are required to put a question of which you know the answer. Otherwise, you will be surprised the answer given by in a cross-examination. So preparation of that level is required for the cross-examination. You are required to decide whether which witness is required to be cross-examined in detail, which witness is required to be cross-examined in short. There is no straitjacket formula for conducting cross-examination, as each case is having a unique facts and circumstances. Sometimes the lawyers ask a question, it's a follow-up question, we can say, and the witness get a chance to explain his earlier statement. So you should avoid that. Mr. Virmani will explain how to cross-examine a witness. So without taking much time of you, we are all here to hear Mr. Virmani on this subject. I have also very little experience of cross-examination, as I have practiced in High Court mainly. But in arbitration, I have conducted cross-examination. And in criminal case, especially, the cross-examination is very important. But I find that the lawyers prepare the cases for cross-examination in the court. They have no occasion to meet the accused because sometimes he's in jail. Their relatives don't know the entire case. In legal aid matters, when the cases are allotted to the lawyer, I request them to first go and meet the accused before argument. Have a conversation with him in the jail. We are requesting the jail authorities to provide the place where the lawyer can discuss with his client. Then only they can prepare effective cross-examination. Thank you very much. I welcome Mr. Virmani to address us. Thank you, my lord, for your enlivening words. It is now my great honor to invite Honorable Mr. Justice Sanjeev Sachdeva
Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, to address this august gathering. My esteemed brother and sister judges on the dais, off the dais. Justice Rusia just mentioned that cross-examination is a dying art. There has always been a debate, is cross-examination an art? Because always the concept is that art is something you're born with. And when I joined the profession way back in 1988, I started in the trial courts. And we used to watch seniors cross-examine, lawyers cross-examine, always used to wonder कि ये सवाल क्यों पूछा, ये क्यों नहीं पूछा. And those are things which we used to see. Then this was in 2002? 2002, British Council came up with a project in Delhi, जब उन्होंने कुछ lawyers को चुना to train in examination, cross-examination. I was one of those lawyers, Mr. Virwani was one of those lawyers. तो हमारी 15 दिन की सुबह से शाम तक ट्रेनिंग हुई एंड देन वी रियलाइज्ड कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन भी सिखाया जा सकता है, दैट आर्ट कैन बी टॉट. एंड देन वी हैव व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर ट्रैवल्ड ओवर आई थिंक 7 or 8 हाई कोर्ट्स. अनफॉर्चुनेटली मध्य प्रदेश आने का मौका नहीं मिला. एंड ट्रेन थाउजेंड्स ऑफ लॉयर्स इन एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन. तो उसमें हमें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि ये क्यों पूछना है, क्यों नहीं पूछना. एंड वी ऑलवेज यूज टू सी कि हो गया तुक्के से सीख लिया, कोई क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा चला गया, आंसर विटनेस केस डिमोलिश हो गया और आपको पता नहीं लगता ये हुआ क्यों, लेकिन हम बड़े खुश होते हैं हो गया. सो एक्चुअली इट्स अ टेक्निक. और आई स्टिल रिमेंबर वो 12-15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब मैं घर गया तो मैं अपने बेटे से बात कर रहा था तो सडनली आई रियलाइज कि मैं तो उसको क्रॉस एग्जामिन कर रहा हूँ. तो उससे जो सवाल होता था क्रॉस एग्जामिनेशन फॉर्म में, बिकॉज एग्जामिनेशन इन चीफ का स्टाइल और क्रॉस एग्जामिनेशन का स्टाइल बिल्कुल ऑपोजिट है. एग्जामिनेशन इन चीफ में आप और स्पेशली जजेस को विटनेस से स्टोरी सुननी होती है कि व्हाट इज द केस दैट ही इज विटनेस्ड, कैसे उसने देखा है. तो वो आप एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस उसको पूछेंगे जिच आर कॉल्ड ओपन क्वेश्चंस. एंड मिस्टर विरमानी विल टेल अस इन ग्रेटर डिटेल कि ओपन क्वेश्चन या जैसे जस्टिस रूसिया ने कहा नॉन लीडिंग क्वेश्चन. नॉन लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? नॉन लीडिंग क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन जिसमें आंसर नहीं होता, सिर्फ प्रश्न होता है, आंसर विटनेस के मुंह से आएगा. आप कहाँ जा रहे हैं, दैट्स अ नॉन लीडिंग क्वेश्चन. आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, दैट्स अ लीडिंग क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आंसर है. तो दिस इज द सटल डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन द क्वेश्चन. और हमें जब तक हमने ये ट्रेनिंग नहीं ली थी तो हमेशा ये कहते थे भाई सजेशन दो. जब पूरा आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर ले हो तो उसके बाद जज कहते हैं विटनेस को भाई सजेशन दीजिए अपने, तो हम सारा केस उसको पुटअप करते हैं, रॉन्ग टू सजेस्ट, रॉन्ग टू सजेस्ट, रॉन्ग टू सजेस्ट. और वो सवाल का उत्तर आने से पहले ही, विटनेस के जवाब देने से पहले ही जज लिखवाना शुरू करते हैं रॉन्ग टू सजेस्ट सो एंड सो. तो इस टेक्निक में सजेशन नहीं देते आप अपने सवाल पूछते हैं जिनमें आपके सारे सजेशन ऑलरेडी आ चुके होते हैं. क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, कैसे क्लोज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन क्रॉस एग्जामिनेशन. अब आई रिमेंबर सम ऑफ द इंस्टेंसेस जब ये ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने बहुत क्रॉस एग्जामिन किया. दिल्ली हाई कोर्ट में हमारे ओरिजिनल साइड है, तो आई डन एक्सटेंसिव क्रॉस एग्जामिनेशन. एंड लकीली जब मेरा नाम प्रपोज हुआ था तो कोई एक पर्टिकुलर मैटर था जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन हुई कि डे टू डे क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है. तो मेरे अपॉइंटमेंट से तकरीबन 4 या 5 महीने पहले तक रोज़ 2 घंटे उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन चलता था. तो बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस हो गया उसमें क्रॉस का. आई रिमेंबर अ केस की, मतलब अब होता क्या है कि हमें ये नहीं पता होता कि कब क्या चीज़ पूछनी है. अब सजेशंस का एक एग्जाम्पल मैंने कोर्ट में नोट किया. एक विल के ऊपर झगड़ा था, तो यंग लॉयर क्रॉस एग्जामिन कर रहा था, उसको क्वेश्चन लिख के उसके सीनियर ने दे दिए, भाई ये पूछ लेना जाके. तो सारे क्वेश्चंस उसने पूछे. केस उनका ये था कि विल पे जो टेस्टेटर है उसके दस्तखत नहीं है, सब फोर्जरी है, ये सब. उसने सारे सवाल पूछे, ये फोर्ज्ड है, ये है, वो है, सब उसका जवाब आ गया. तो लास्ट में जज ने कहा वकील साहब अपने सजेशन दो. हालांकि केस उसका पूरा हो गया था, लेकिन अब सिखाया जाता है कि सजेशन दो.
तो सजेशंस करते करते लास्ट में उसने एक क्वेश्चन पूछा, भाई ये जो जब इसने उस पर दस्तखत किए थे तो ये होश में नहीं था। उससे पूरा उसका केस कि ये दस्तखत फोर्ज्ड हैं डिमोलिश हो गया, एक छोटे से सजेशन से। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। क्रॉस एग्जामिनेशन आप तभी कर सकते हो जब आपकी प्रेपरेशन पूरी हो। आप कोई ऐसा सवाल नहीं पूछोगे जिसका आपको उत्तर नहीं पता पहले से। अगर डाउट है तो बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से आप वो सवाल पूछेंगे। और ये भी होता है कि कब हमने रुकना है, कब नहीं पूछना कुछ। कई बारी कॉन्ट्रडिक्शन आती है विटनेस के स्टेटमेंट में, हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई विटनेस की कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, इसको तो आज आई विल किल द केस। तो एक किसी ने एक सवाल पूछ रहा, किसी कोई इंसिडेंट के बारे में, मर्डर केस था, तो उसने कहा जी जब ये इंसिडेंट हुआ तो आप कहाँ थे? उसने कहा जी मैं दरवाजे के पास खड़ा था। तो थोड़ी देर क्रॉस एग्जामिनेशन चलता रहा, थोड़ी देर बाद फिर उसने सवाल पूछा, जी ये जब इंसिडेंट हुआ तो आप कहाँ थे? तो उसने कहा जी मैं खिड़की के पास खड़ा था। थोड़ी देर फिर क्रॉस चलता रहा, तीसरी बारी उसने फिर पूछा कि जब ये सवाल हुआ, जब ये इंसिडेंट हुआ तो आप कहाँ थे? तो उसने कहा मैं कुर्सी पे बैठा था। तो वकील साहब बहुत खुश कि अब तो इस विटनेस को आज मैं कच्चा जमा जाऊंगा। तो उसने चौथी बारी फिर पूछा कि जब ये इंसिडेंट हुआ आप कहाँ थे? उसने कहा अब तो ये विटनेस गया। तो विटनेस कहता है जी क्या बताएं साहब, जब ये हो रहा था तो कभी मैं दरवाजे के पास, कभी खिड़की के पास, कभी मंजी पे बैठा हुआ था। जो कॉन्ट्रडिक्शन आई थी वो खत्म हो गई। तो इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू नो व्हेन टू स्टॉप। एंड आई रिमेंबर एक केस में क्रॉस एग्जामिन कर रहा था, अगेन विल का झगड़ा था। सिस्टर ने केस फाइल किया हुआ था ब्रदर की तरफ से पार्टीशन का। ब्रदर ने विल सेटअप करी हुई थी, विल फादर की थी जिसमें ब्रदर एक अटेस्टिंग विटनेस था। तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुआ तो मैंने विटनेस से पूछा जी आपको सवाल हिंदी में पूछें या इंग्लिश में पूछें? वो लेडी थी सिस्टर, कह रही थी हिंदी में पूछना। मैंने जब अपने नोट्स देखे तो उसमें ये मैंने देखा कि वो इंग्लिश की टीचर थी। तो उसी समय मेरे दिमाग में ये खटका हुआ कि ये इंग्लिश टीचर होके मेरे से क्यों बोल रही है हिंदी के सवाल पूछो। थोड़ी देर बाद जब मेरे को पता लगा, जब दो चार सवाल पूछे तो मेरे को पता ये लगा कि उसके हस्बैंड को इंग्लिश नहीं आती थी और वो कोर्ट में खड़ा होकर उसको पीछे से इशारा कर रहा था। तो अब उसको अगर सवाल समझ नहीं आएगा तो वो इशारा कैसे करेगा, इसलिए उसकी वाइफ ने कहा जी हिंदी में पूछना। और वकील साहब, हमारे एक सीनियर वकील साहब थे, जहाँ सवाल कोई थोड़ा टेढ़ा हो, बिफोर कि सवाल पूरा कंप्लीट हो वो खड़े होकर लड़ना शुरू हो जाए, तो इतनी देर में इशारा हो जाए और केस खत्म, क्रॉस एग्जामिनेशन में गड़बड़। तो जब मैंने 4-5 बारी 6 बारी ये देखा तो आधा पौना घंटे बाद विटनेस को सिंपल सिंपल सवाल, आप क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, क्या करें, तो विटनेस को लगा इस वकील साहब को तो कुछ आता ही नहीं है, तो ये तो बस ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बीच में जहाँ टेढ़ा सवाल आए वो वकील साहब लड़ें तो हो जाए। अब मैंने लास्ट में एक सवाल पूछा कि ये विल देखिए, इस पे बताइए आपके फादर और ब्रदर के दस्तखत कहाँ है, और मैंने वकील साहब के कंधे पे हाथ रख लिया। वो उठ नहीं पाए और मेरे से लड़ना शुरू हुआ। इतनी देर में उन्होंने कहा जी ये फादर के दस्तखत हैं, ये मेरे ब्रदर के दस्तखत हैं। टेस्टेटर के और आई विटनेस के सिग्नेचर एडमिट हो गए, तो वहीं केस खत्म हो गया। तो इसलिए आपको बड़ा कैलकुलेटिव तरीके से क्रॉस करना पड़ता है, और वो तभी होगा अगर आपकी तैयारी पूरी होगी। आपको ये भी समझना पड़ता है विटनेस कैसा है। आई रिमेंबर हमारे एक दिल्ली में बहुत सीनियर वकील साहब थे, अब तो वो रहे नहीं। उनकी आदत थी, वो बहुत, मतलब ही वॉज एन एक्सपर्ट इन क्रिमिनल ट्रायल में, एक्सपर्ट थे। उनका असूल था कोर्ट में घुसते ही पहले दूसरे वकील से लड़ेंगे, फिर जज से लड़ेंगे, फिर विटनेस से लड़ेंगे। तो एक बारी किसी ने उनसे पूछा जी आप ये क्यों करते हो? कह रहे मेरे को इनसे कोई वो नहीं है, दुश्मनी या लगाव नहीं है। अब मेरी जब इनसे लड़ाई होगी तो इनका फोकस सारा ये रहेगा कि इस वकील को सबक कैसे सिखाना है। केस के बारे में भूल जाएंगे और जो निकलेगा सच निकलेगा। तो दैट वाज द टेक्निक। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट टेक्निक, नॉट दैट आई एम सेइंग कि आप जाके लड़िए सबसे, पर there are simpler ways of doing things. And since we are here to hear Mr. Virmani, I'm sure he'll make it very interesting for us. Thank you very much for coming. This is, again, like I said last time, again, one of the sessions in a series of other training sessions that we'll have. Thank you very much.
Thank you, Lordship, for your enlightening and inspiring address. May I most respectfully invite the esteemed dignitaries on the dais to kindly adorn the front row with their presence. Moving ahead, it is now my honor to introduce Mr. Rajiv K. Virmani, Senior Advocate. Mr. Rajiv Virmani, sir, specializes in court litigation, both domestic and international arbitration and advisory services. His practice spans commercial disputes, constitutional law, intellectual property, and more, with experience across the Supreme Court, High Courts, and various tribunals in India. Beginning his career with Khaitan and Company in 1981, he established his independent practice in 1983 and was designated as a senior advocate by Delhi High Court in 2009. He is a lead trainer and part of Advocacy Skills training program in India since its inception in the year 2002, which was launched as a part of Indo-British Initiative. He has trained over 8,000 advocates nationwide. Additionally, he is a senior mediator accredited with Delhi High Court Mediation and Conciliation Center since its inception in the year 2006. We are privileged to have with us Mr. Rajiv Virmani today, and I invite him to please address the gathering. Thank you for your kind words. Honorable Justice Sachdeva, Honorable Judges of High Court of Madhya Pradesh, the learned judicial officers. I have a long list. I will not repeat all the names. My dear brothers and sisters and colleagues at the bar, I am truly honored and privileged to be here amongst you to share with you my experience, whatever I have learned over a period of time as far as the trial advocacy skills are concerned. This is a program which is not going to be about any substantive law or procedural law. So I'm not going to be talking to you about any sections of law. Let me tell you, all of us are exposed to examination in chief and cross-examination since our childhood. So when you have a fight with your sibling, your parents ask you, "Kya hua? Kisne mara?" So that's where the examination in chief begins. And as you grow up, you come late from the school, you are asked, "Kahan the? Itni der kyun ho gayi?" So there is an examination in chief going on. And as you grow older and you're working, and I'm saying in a lighter vein, and you come back home after dinner and somebody's already waiting for you for dinner, you are told, "Aaj phir khana kha ke aayoge bahar." So that's a cross-examination. So there is a difference when information was sought from you, कि कहाँ थे, इतनी देर क्यों हो गई, to a suggestion कि बाहर खाना खा के आए होगे आज. That means something is being conveyed to you and you are being asked to say yes or no. So we have all experienced it, but yes, when we come into this profession, we need to relearn it and relearn it in such a fashion that we are able to efficiently assist the court. You see, the skills are all about us being efficient because the judges are the consumers of our skills. हम जो भी कोर्ट में काम करते हैं, अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य ये होता है कि जजेस को कोर्ट को असिस्ट करें, और जितना एफिशिएंट हम होंगे उतनी ही एफिशिएंट हम अपनी कोर्ट को बना पाएंगे. सो ये जो स्किल्स हैं, इसका एम यही है कि हम अपने आप को एफिशिएंट बनाएं. वी लर्न दिस स्किल so that we are able to help in administration of justice. I have a small presentation that I wish to present before you. This is Windows. Yes. So since आप लोगों ने टॉपिक चुना आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, तो मेरी पहली स्लाइड ये है कि when
डू वी क्रॉस एग्जामिन? बड़ा छोटा सा सवाल उठता है, कब क्रॉस एग्जामिन करते हैं? तो क्रॉस एग्जामिनेशन इज नीडेड जब एक ऑपोजिट पार्टी अपना विटनेस लाती है, उसका एफिडेविट एविडेंस फाइल करती है सिविल केसेस में, या उसको एग्जामिन करती है इन चीफ. यू हैव टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, बिकॉज अदरवाइज इफ यू डोंट क्रॉस एग्जामिन, उसकी टेस्टिमनी पढ़ी जाएगी और हो सकता है आपके खिलाफ हो, आपके क्लाइंट के खिलाफ हो. तो क्रॉस एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है. सो अपॉर्चुनिटी हमेशा दी जाती है क्रॉस एग्जामिन करने की. नाउ therefore that takes us to the first question. So examination in chief. Examination in chief में क्या होता है? एक witness आता है एक पार्टी का. That witness has to tell the court कि क्या हुआ है. What is the story? What is it that the witness knows? So it is very important that we learn how to extract this story from the witness. Now, you've seen in some cases, there is like criminal trials, you only have oral examination in chief. वहाँ पर कोई affidavit in evidence नहीं होता. 138 cases में होता है affidavit in evidence, but ज़्यादातर cases में आपने देखा है oral examination in chief ही होता है. So बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि oral examination in chief जब होता है या affidavit भी जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाएं उसको. And हमें कई बारी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी प्रूव करने होते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ में, जो डॉक्यूमेंट्स दूसरी पार्टी ने डिनाई करे होते हैं. तो हमें वो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है जब हम एग्जामिनेशन इन चीफ की तैयारी करते हैं. एंड देयरफॉर बाय एग्जामिनेशन इन चीफ वी प्रेजेंट टू द कोर्ट फैक्ट्स विच आर रेलेवेंट, और द फैक्ट्स विच आर इन इशू वी लीड एविडेंस ऑन दोज फैक्ट्स. नाउ इसकी तैयारी कैसे करें एग्जामिनेशन इन चीफ की? हर एक किसी का अपना तरीका होता है. हमें लॉ स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि हम एग्जामिनेशन इन चीफ की तैयारी कैसे करें. हाउ डू वी प्रिपेयर? इट इज़ नॉट ए सब्जेक्ट, इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. सो वी ऑल लर्न बाय सीइंग आवर सीनियर्स और बाय सीइंग अदर्स दैट हाउ दे आर गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन. बट देयर इज ए मेथड ऑल्सो, एंड माई एंडेवर टुडे इज कि मैं आपको वो मेथड जो है, जो हमने सीखा है, ऐसे जैसे सचदेवा ने बताया 2002 में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था. वी वर ऑल ट्रेन्ड एंड वी हैव बीन ट्रेनिंग लॉयर्स अक्रॉस द कंट्री ऑन दीज स्किल्स. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं आपसे जो हमने सीखा है आपके साथ शेयर कर सकूं. तो प्रिपरेशन में सबसे बड़ी जो बात होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई what are the facts that are in dispute. कभी भी कोर्ट में खड़े होकर अगर आप एग्जामिनेशन इन चीफ की तैयारी करेंगे तो आप काफ़ी कुछ मिस कर जाएंगे. और प्लीज़ रिमेंबर, एग्जामिनेशन इन चीफ की तैयारी आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं. आपका क्लाइंट आपके पास बहुत उम्मीद लेके आया है. इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट दैट वी प्रिपेयर sufficiently in advance for examination in chief. And therefore, we need to read, we need to talk to the client, और हमें देखना होगा कि क्या facts हैं which are in dispute, and what are the issues that are required to be addressed by the evidence of the parties. आपको अपने क्लाइंट से काफ़ी डिटेल में बात करनी होगी. ये मत सोचिए कि हम कोर्ट में 10 मिनट पहले बुला लिया, आधा घंटा सुबह पहले बुला लिया तो तैयारी हो जाएगी. नहीं होगी, क्योंकि जब आप क्लाइंट से बातचीत शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ और भी है उससे जानने का. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप क्लाइंट को बुलाएं और डिटेल में उससे बात करें, समझें कि उसको क्या पता है. प्लीज़ रिमेंबर, जो एविडेंस दे रहा है विटनेस, उसकी कहानी जज को हमने बतानी है, अपनी कहानी नहीं बतानी. इट इज़ नॉट ए स्टोरी ऑफ द लॉयर दैट हैज़ टू गो टू द जज. इट इज़ द स्टोरी ऑफ द विटनेस that has to go to the judge. So it's important for you to meet your client, interview him, discuss with him. Identify the documents, कि कौन से documents हैं जो उस witness से हमने प्रूव कराने हैं. अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उस विटनेस को दिखाएंगे जो उसने कभी देखा ही नहीं होगा तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं स्टैंड कर पाएगा और विटनेस आपका डॉक्यूमेंट कभी प्रूव ही नहीं होगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो इन एडवांस. Preparation is a very important part of our skills, not only for trial but even otherwise.
एंड देन आपके जो विटनेस की स्टोरी है उसको आपको डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड करना होगा. आई टेल यू हाउ. आप सब ने नॉवेल्स पढ़े होंगे, कहानियां पढ़ी होंगी. सम नॉवेल्स आर वेरी थिक, सम आर थिन. सो नॉवेल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3. कुछ नॉवल जब आप पढ़ते हैं तो एक बार आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आखिर के चैप्टर तक आप छोड़ना नहीं चाहते, चाहे रात के 2 बज जाए. और कुछ नॉवेल्स ऐसे होते हैं जो आप उठाते हैं और 10 मिनट में कहते हैं बहुत बोर हो गए. क्यों होता है ऐसे? एक स्टोरी है जो चलती है और आपको बांध के रखती है. यू फील सो गुड, यू रीड दैट स्टोरी, इट इज कंसिस्टेंट, इट इज फ्लोइंग एंड इट इज टेकिंग यू टू अ लॉजिकल एंड. और कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो आप कुछ पेज पढ़ने के बाद कहते हैं पता नहीं क्या लिखा है. सो इमेजिन आपका एग्जामिनेशन इन चीफ आपने कराया. दैट स्टेटमेंट इज देयर बिफोर द जज सिटिंग इन चेंबर व्हेन ही हैज टू राइट अ जजमेंट एंड ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि बोला क्या है विटनेस ने, समझ ही नहीं आ रहा. तो क्या होगा? इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू द जज थ्रू द टेस्टिमनी ऑफ योर विटनेस कि आपके क्लाइंट का केस क्या है, तो आप अपनी चीज साबित ही नहीं कर पाएंगे, प्रूव नहीं कर पाएंगे, एंड इट लीड टू डिसमिसल और रिजेक्शन ऑफ योर केस. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू थिंक ऑफ द स्टोरी. आई टेल यू, आज मैं सुबह दिल्ली से आया हूं. सुबह मेरी फ्लाइट थी 10 बजे, 12 बजे जबलपुर में लैंड करी है. उसके बाद मैं होटल गया, वहां पर मैंने लंच किया, उसके बाद थोड़ी तैयारी करी शाम की, फिर मैं हाई कोर्ट में आया. तो इस पूरी कहानी में आपने देखा देर आर चैप्टर्स, देर आर टॉपिक्स. कि दिल्ली से चला, यहाँ पहुंचा, होटल गया, खाना खाया, तैयारी करी, हाई कोर्ट आया. अगर ये स्टोरी आप लिखें कि आप अगर विटनेस से पूछें कि भाई आप हाई कोर्ट कितने बजे पहुंचे थे? 4 बजे पहुंचे थे. सुबह दिल्ली से कितने बजे चले थे? 10 बजे चले थे. तो क्या हो रहा है? एक लॉपसाइडेड स्टोरी सामने आ रही है, फ्लो नहीं करेगी वो स्टोरी. सो कोई भी विटनेस का जिसका आपने बयान करना हो, आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, you need to divide it into chapters or topics, and those topics are best divided time wise. कि अगर आप टाइम एलोकेट कर दें कि इस दिन इस वक्त की ये बात है, उसका क्या बयान हो सकता है, उसके बाद क्या रेलेवेंट टाइम है, क्या रेलेवेंट डेट है, उसका क्या बयान हो सकता है, द स्टोरी विल मूव फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक एंड चैप्टर टू चैप्टर. एंड जो पढ़ेंगे, जब कोर्ट में जज पढ़ेंगे, तो उनको भी लगेगा कि हाँ ये वाकया हुआ है इस तरह से. जो भी वट एवर इज द स्टेटमेंट यू वांट द जज टू बिलीव इन, वो उस तरह से उसको समझ सकेंगे. तो डिवाइडिंग द स्टोरी दैट द विटनेस हैज टू टेल इनटू स्मॉलर चैप्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज रिमेंबर इट. नाउ अगर आप ओरल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वंस यू नो कि ये स्टोरी के ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक, तो पिकअप वन टॉपिक, पिकअप वन चैप्टर, उस पर सवाल पूछिए, और वो चैप्टर जब खत्म हो जाए तब दूसरे उस पर जाइए, नेक्स्ट चैप्टर पर. उसका एक फायदा और भी है. देखिए, जो विटनेस आया है उसकी तो आप बीती है, उसके साथ घटना हुई है, उसको पता है. अगर आप पहले उससे शाम की बात पूछेंगे और तुरंत बाद सुबह की घटना पे ले जाएंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा जवाब देने में. तो इट इज इंपॉर्टेंट from the witness point of view also that he narrates the story the way it has happened, that you move from one chapter to the other. अब सवाल ये उठता है कि हमने कई बार देखा है कोर्ट में कि जब सवाल पूछते हैं तो हम बहुत लंबा सा सवाल पूछ लेते हैं कि जब आप शाम को हाई कोर्ट आए थे, उसके पहले आप होटल में थे, सुबह दिल्ली से चले थे, कितने बजे थे, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई इसमें, इस सवाल में. तो विटनेस जो है वो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, और जो जवाब आएगा वो गार्बल्ड होगा, हो सकता है कोर्ट को भी ना समझ में आए वो जवाब. तो एक टेक्निक हम यूज करते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. फ्रेम शॉर्ट क्वेश्चंस, और मैंने हाईलाइट करा है नॉट लॉन्ग वंस, बिकॉज हम लोगों में से कईयों की आदत होती है कि बहुत सारे एक सवाल को बहुत लंबा कर देते हैं हम. और लंबा क्यों होता है, उसका कारण है. अगर एक सवाल में कई सारे फैक्ट्स हम रोल इन कर दें, मिक्स कर दें, तो वो सवाल लंबा हो जाएगा. जैसे मैंने अभी आपको बताया
आप अगर पूछें कि भाई आप कितने बजे हाई कोर्ट आए थे और उसके पहले आपने क्या खाया था और सुबह कितने बजे चले थे, तो उसमें 3 फैक्ट्स आपने रोल इन कर दिए एक सवाल में, तो बहुत लंबा सवाल हो गया। विटनेस हो सकता है कहीं कंफ्यूज होके कुछ डिफरेंट जवाब दे दे, सही जवाब ना दे, और ऐसा जवाब दे दे जो शायद गलत हो। तो उसको हाउ टू अवॉइड दिस सिचुएशन, द बेस्ट वे इज फ्रेम शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है कि जिस क्वेश्चन में आप सिर्फ एक ही फैक्ट एक बारी में विटनेस से पूछते हैं। आप सुबह कितने बजे चले थे? 10 बजे। कितने बजे पहुंचे थे? 12 बजे। तो क्या हुआ, एक सवाल में एक बार में एक ही फैक्ट पूछा गया है। सो वंस आप इस हैबिट को अपना लेंगे कि एक क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन होगा, एक ही फैक्ट आप एक बारी में पूछेंगे, तो जो स्टोरी है वो बड़ी अच्छे से सामने आ जाएगी। वो घुमावदार स्टोरी नहीं होगी जिसमें समझने में भी दिक्कत हो। और फिर एक और टेक्निक यूज करते हैं हम बोलते हैं लिंक द क्वेश्चंस टू प्रीवियस आंसर। सो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने सवाल पूछा कि आप कितने बजे सुबह दिल्ली से चले थे, हमने जवाब दिया 10 बजे चले थे। तो अब आपके पास एक जवाब आ गया कि 10 बजे दिल्ली से चले थे। तो अगला सवाल ये होता है कि जब आप दिल्ली से 10 बजे चले तो आप कितने बजे पहुंचे? तो एक आपने पिछले सवाल को लिंक करते हुए अगला सवाल पूछ दिया। तो जवाब आया 12 बजे पहुंचे। तो जब आप 12 बजे पहुंचे जबलपुर पे, तो वहां से कहां गए? सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर लिंकिंग द प्रीवियस आंसर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे क्या हो रहा है कि आपकी स्टोरी भी कंसिस्टेंट बनती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक आपने पकड़ा तो एक स्टोरी कंसिस्टेंट आपकी बन जाएगी उस टॉपिक पर, अगर आप अपने जवाब को, अपना अगले सवाल को पिछले जवाब से लिंक करेंगे। तो ऑफकोर्स जब आप नए चैप्टर में जाएंगे तो आपको नए सवाल पूछना पड़ेगा, बट दिस इज अ गुड आइडिया। और उसमें क्या होगा कि आप भी जो है जब आप सवाल पूछेंगे तो यू विल ऑल्सो नॉट लूज ट्रैक ऑफ वॉट यू आर आस्किंग। एंड ऑफकोर्स हम सब ने देखा है किसी समय एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और द अदर कि हम एग्जामिनेशन इन चीफ में सवाल पूछते हैं विटनेस से, या तो कोर्ट से ऑब्जेक्शन आ जाती है या ऑपोजिट साइड से ऑब्जेक्शन आ जाती है लीडिंग क्वेश्चन। सो लीडिंग क्वेश्चन तो आप पूछ नहीं सकते एग्जामिनेशन इन चीफ में, एंड दैट्स अ चैलेंज कि हम कैसे अवॉइड करें। एंड एज जस्टिस सचदेवा सेड, लीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें यू हैव एन आंसर, एंड लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। तो हम कैसे सवाल बनाएं जिससे कि वो सवाल जो है हमारा लीडिंग क्वेश्चन ना रहे? तो उसकी एक टेक्निक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो टेक्निक ये है कि अगर आपका प्रश्न जो है उसके शुरू में आप लगा दें व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, तो आपका जो प्रश्न है वो एक ओपन एंडेड सवाल रहेगा, क्योंकि उस सवाल में जवाब नहीं छुपा होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट, तो मैंने सवाल किससे शुरू किया? व्हाट से शुरू किया। शर्ट का कलर मैंने उनसे पूछा है, मैंने नहीं बताया उनको। तो क्या सवाल था? व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट। तो वहां से जवाब आएगा व्हाइट। सो द विटनेस हैज आंसर्ड, because in examination in chief the judge wants to know what witness has seen, what witness has suffered. Judge does not want to know in examination in chief what you want to tell the witness. So please remember, ये बहुत important distinction है। और examination in chief में आपका सवाल leading question ना बने, उसके लिए आप ये जो मैं आपको prefix बता रहा हूं what, when, where, why, आप अभी थोड़ी देर में हम एक एक्सरसाइज भी करने वाले हैं जहां आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कुछ ये टेक्निक यूज करने के लिए। तो यू विल रियलाइज कि जब आप व्हाट, व्हेन, वेयर, हाई, व्हाई एटसेट्रा लगाते हैं तो वो सवाल जो है वो लीडिंग क्वेश्चन नहीं होता है, बिकॉज द आंसर और द रिस्पॉन्स और इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम द विटनेस, यू आर नॉट सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now we move to the next chapter.
cross examination. Why do we cross examine? So the two important things, of course, there could be other reasons. One is cross examination is done to undermine the credibility of the witness. आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये witness तो विश्वास करने लायक है ही नहीं, झूठ बोल रहा है witness, या आप उस witness से कुछ ऐसी चीज निकलवाना चाहते हैं जो आपको सपोर्ट करे. सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है आपके हाथ में ये चीजें साबित करने की. ये विटनेस को तो आप रिलाय कर ही नहीं सकते, एंड उसके लिए स्किल्स चाहिए, आर्ट चाहिए, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे हमने बोला. तो इट कम्स विद प्रैक्टिस, बट देयर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट वी हैव लर्नड एंड दे कम इन हैंडी व्हेन यू वांट टू क्रॉस एग्जामिन अ विटनेस. लेट्स सी व्हाट आर दोस. One is, when you are preparing for cross examination, you have to have a 360-degree view of the matter. So again, जैसे मैंने एग्जामिनेशन चीफ के वक्त बोला आपको, क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट में खड़े होके फाइल उठा के आप तैयार नहीं कर सकते हैं. आपको चेंबर में, अपने ऑफिस में, अपनी टेबल पे बैठ के पूरा 360-डिग्री व्यू मैटर का समझना पड़ेगा. उसके बिना क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है. आप सोचें कि कोर्ट में फाइल उठा के हर एक पैरा का सवाल पूछ से जाएंगे, वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, रीड द प्लीडिंग्स. पढ़िए. जब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि काफी कुछ है मसाला सवाल पूछने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन. रीड द डॉक्यूमेंट्स, रीड द एग्जामिनेशन इन चीफ, एंड आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ चैलेंज और डिसएग्रीमेंट. वो कोर्ट में खड़े होकर नहीं हो सकता. अगर हम सुबह सोचें अगर आधा घंटा पहले तैयारी कर लेंगे, वो नहीं हो सकता. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट प्रिपरेशन क्रॉस एग्जामिनेशन में इट इज डिफिकल्ट टू सक्सीड. अपने क्लाइंट से मिलिए एंड असेस ये जो विटनेस जिसको क्रॉस एग्जामिन करना है उसके किस टेस्टिमनी को, किस एग्जामिनेशन इन चीफ में उसने जो बात बोली है उसको हम पकड़ सकते हैं. गलत बोला है उसने, या उसमें उसने कोई बात छुपाई है ना. ये सब चीजें आप कोर्ट में 2 मिनट में, 10 मिनट में नहीं कर सकते. इसके लिए आपको आराम से बैठ के तैयारी करनी होगी और अपने क्लाइंट से पूछना होगा कि ये बताओ, ये बोल रहा है इसमें, एंड यू गेट इन्फॉर्मेशन. लेट मी टेल यू, आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, व्हेन यू सिट डाउन विद क्लाइंट्स एंड प्रोब देम एंड फाइंड आउट फ्रॉम देम, दे एक्चुअली कम आउट कि अरे हाँ मैं भूल गया था, ये भी हुआ था. So it requires deliberation also. And then you need to identify what you need to achieve considering the scope of witness examination in chief. जरूरी नहीं है कि उसने जो कुछ बोला है उस पर ही आप सब कुछ, हर एक सेंटेंस पर आप उसको क्रॉस एग्जामिन करें. बट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि उसका किस एरिया है, क्या उसका टेस्टिमनी का एरिया है जिसमें हमें उसको क्रॉस एग्जामिन करना है. सो प्रिपरेशन, आई विल एम्फेसाइज, इज वेरी इंपॉर्टेंट for our practice. Then again, what are the techniques for cross examination? So short questions. घर पहुंचे, सवाल क्या होता है, आज फिर बाहर खा के आए हो, तो शॉर्ट क्वेश्चन, पॉइंटेड क्वेश्चन, कोई स्कोप नहीं है उसमें कुछ और चीज होने का. सो शॉर्ट क्वेश्चन, पुट द विटनेस एट ईज. जैसे जैसे सचदेवा ने बताया कि आराम से थोड़ा चलो, क्योंकि जो विटनेस ऑपोजिट साइड का होता है उसको ये बताया गया होता है कि वकील साहब आपसे जो भी पूछेंगे आपको मना करना है. तो वो जब शुरू में आता है तो इस पूरी तैयारी से आता है कि मुझे सब कुछ डिनाई करना है. आप उससे पूछेंगे बाहर धूप निकली है तो कहेगा नहीं बादल छाए हुए, तो इतना भी बोलने को तैयार होगा वो. तो उसको थोड़ा पुट हिम एट ईज. सवाल पूछो, भाई कहाँ पढ़ेगा आप, कहाँ पैदा हुए, किधर हुआ, जो भी 2-4 सवाल प्रिलिमिनरी. तो उसको लगेगा इनको तो कुछ आता नहीं है. And then, you know, he's at ease. Then you can go for the kill. But आप सीधा ही अटैक शुरू कर देंगे तो बहुत डिफेंसिव होगा, गार्ड पे होगा और शायद आपको उतना कोऑपरेशन नहीं मिलेगा. So it's very important for you to understand कि put him at ease. वो बहुत डिफेंसिव होके आया होगा, तैयारी करके आया होगा कि मुझे हर चीज को डिनाई करना है, तो उसको थोड़ा let him lose his guard also. That is important. Ask leading questions. Now, why do we say ask leading questions? देखिए, हमने अभी तक देखा था एग्जामिनेशन इन चीफ में
व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हेन, आप सब सवाल पूछेंगे तो आपको विटनेस से इंफॉर्मेशन मिलेगी। पर क्रॉस एग्जामिनेशन में हमें विटनेस से इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन में तो हमें विटनेस को बताना है या सवाल ऐसा करना है कि वो या तो हाँ में जवाब दे या ना में जवाब दे, जो आप चाहते हैं। राइट? अगर मैं फॉर इंस्टेंस मैं आपसे पूछूं कि पहले मैंने पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ योर शर्ट, तो जवाब आया माय शर्ट इज वाइट इन कलर। तो विटनेस ने काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी मुझे। पर अब मैं सोचता हूं कि मैं विटनेस को इतना बोलने का मौका नहीं देना चाहता, विटनेस को मैं भटकने नहीं देना चाहता। विटनेस मस्ट रिमेन कन्फाइंड टू व्हाट आई वांट हिम टू से। सो आई विल से, इज इट करेक्ट दैट योर शर्ट इज वाइट इन कलर? तो विटनेस क्या बोलेगा? यस, अगर वाइट कलर की शर्ट है। तो उसको चॉइस नहीं दी हमने। सो दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन which does not give the witness a choice to say beyond yes or no, depending upon what you want from him. So, leading questions, how to ask leading questions again is a very important technique. एक हमने देखा है हमारी हम भी जब प्रोफेशन में आए थे तो देखते थे क्रॉस एग्जामिनेशन में कि विटनेस को केस करना शुरू कर दो, आई पुट इट टू यू, आई पुट इट टू यू, आई पुट इट टू यू, जो भी चीज आपने बोली आई पुट इट टू यू लगा के बोल दो, और सवाल का जवाब आने से पहले जो स्टेनो है वो टाइप करना शुरू कर देते हैं, इट इज डिनाइड एज इनकरेक्ट, इट इज डिनाइड एज इनकरेक्ट। सो कोई विटनेस से कोई जवाब नहीं आता, आपने सवाल पूछा, स्टेनो ने टाइप कर दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो गया। सो प्लीज अवॉइड यूजिंग द एक्सप्रेशन आई पुट इट टू यू, बिकॉज ये हमारे सिस्टम में इतना इनग्रेन्ड है ये एक्सप्रेशन कि जहां आपने आई पुट इट टू यू लिखा, या तो कोर्ट से या स्टेनोग्राफर से सीधा वो आ जाएगा कि इसको ये डिनाई कर दो। वो कहेंगे विटनेस को भी तुम्हें भी बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो डिनाई करना है। सो आई पुट इट टू यू इज समथिंग वी पुट इट असाइड नाउ। गोइंग फॉरवर्ड, आई पुट इट टू यू इज पुट असाइड। सो इंस्टेड प्लीज ट्राई दीज टू एक्सप्रेशंस। वन इज वी कैन से, सी आई कैन आस्क हिम आई पुट इट टू यू दैट यू आर वेयरिंग ए व्हाइट कलर शर्ट। वो देखेंगे यार वाइट तो थोड़ा नहीं है, थोड़ा ऑफ वाइट है, नो इट इज नॉट वाइट। सो ही इज टोल्ड कि आई पुट इट टू यू जब आएगा तो आपको डिनाई करना है। सो ही विल ट्राई टू गिव एन आंसर व्हिच विल नॉट बी फेवरेबल टू यू। बट इफ यू कैन पुट इट डिफरेंटली, इज इट करेक्ट दैट योर शर्ट इज वाइट इन कलर? सो इट इज वेरी इनॉक्यूअस, बड़ा आपने साधारण तरह से उसको पूछा है, तो आपको आई पुट इट टू यू से बेहतर जवाब मिलेगा अगर आप इज इट करेक्ट एक्सप्रेशन लगाएं, या ये लगा दें डू यू अग्री दैट योर शर्ट इज वाइट इन कलर। तो यू थिंक ये हार्मलेस सी चीज पूछ रहे हैं मेरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ बोलने में, बट आई पुट इट टू यू लगाने में तो तुरंत डिनाई हो जाएगा विटनेस के बोलने से पहले ही। सो ये प्लीज आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन अवॉइड इट एंड स्टार्ट यूजिंग डिफरेंट एक्सप्रेशंस, इट विल डेफिनेटली हेल्प अस। देन हम एक और टेक्निक यूज करते हैं, वी कॉल इट रिंग फेंस द विटनेस। विटनेस के एस्केप रूट बंद करने का। तो कई बार सिचुएशन होती है कि विटनेस जो है वो भागने की कोशिश करता है जब आप उससे सवाल पूछते हैं जहां उसके पास जवाब नहीं होता है। तो अगर हम उसके भागने के जो रास्ते हैं एक एक करके बंद करते जाएं, तो विटनेस के पास कोई चारा नहीं होगा बजाय इसके कि वो आपकी बात का जवाब दे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट था मैनेजमेंट का रिलेटेड, शेयर होल्डर रिलेटेड, और एक पार्टी कह रही थी कि तुमने ठीक काम नहीं किया, कंपनी ठीक से नहीं चलाई। दूसरी पार्टी का कहना था कि भाई हमने क्या, कंपनी तो तुम ही चला रहे थे, जो कंपनी का जो फैक्ट्री मैनेजर था जो प्रोडक्शन देखता था वो भी तुमने अपॉइंट करा था। तो उसने कहा नहीं नहीं ये तो आपकी सलाह से अपॉइंट हुआ था। तो ये सब बात हुई, खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद हमने सवाल पूछा, और ये हमें कैसे पता लगा कि जब हम बात कर रहे थे क्लाइंट से क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई कि जो फैक्ट्री मैनेजर था, ये हम जब ये डिस्प्यूट हुआ उसके बाद ये छोड़ के उस व्यक्ति के पास चला गया जो कह रहा था कि फैक्ट्री मैनेजर यूजलेस था। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन मिली। जो व्यक्ति क्रॉस एग्जामिनेशन में बोल रहा था कि फैक्ट्री मैनेजर यूजलेस था,
उसको हमने तुरंत सवाल पूछा कि क्या ये बात सही है कि फैक्ट्री मैनेजर हमारी कंपनी को छोड़ के तुम्हारी कंपनी में फैक्ट्री मैनेजर ज्वाइन कर लिया? तो बताइए कि जिसको वो यूजलेस बोल रहा है उसको वो खुद ही एम्प्लॉय कर रहा है आफ्टर द डिस्प्यूट्स अरोज, ऑब्वियसली his testimony is not to be believed. So you have to block all the ways for the witness to escape. Justice Lucia sir ने भी बताया था हमें, avoid asking questions on a subject where you don't know the answer. तो अगर आपको नहीं पता कि क्या जवाब मिलने वाला है तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप. इन क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है आप दूसरी पार्टी का केस ही साबित कर दें ऐसा सवाल पूछ के. तो प्लीज अवॉइड ऐसा सवाल ना पूछें जिसका आपको ही जवाब ना पता हो. जवाब आपको कैसे पता होगा? आपने अपने क्लाइंट से मिले होंगे, तैयारी करी होगी, तो क्लाइंट आपका बताएगा कि हाँ इसका मेरे पास जवाब है ही नहीं कोई. तो ऐसे एरिया में हम ना जाएं जहां हमें जवाब ही नहीं पता कि क्या जवाब मिल सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. इट्स अ ह्यूज रिस्क अगर हम ऐसे एरिया में जाते हैं. Avoid repetition if you have not received the desired answer. Right? जस्टिस सचदेवा ने बताया कि पहले इंस्टेंस में वो दरवाजे पे खड़ा था, फिर दूसरे इंस्टेंस में वो खिड़की पे था, तीसरे इंस्टेंस में चारपाई में बैठा हुआ था या कुर्सी पे बैठा हुआ था. तो एक तो हुआ कि विटनेस समझ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है. आपको अपने मन का आंसर नहीं मिला शायद. देयर कुड बी अनदर सिचुएशन. आप शायद ये बताना चाह रहे हो कि विटनेस तो बाहर खड़ा था, तो आप बार बार उस सवाल को रिपीट कर रहे हैं कि शायद ये बोल दे मैं बाहर खड़ा था, बट वो नहीं बोलेगा. तो रिपीटिशन जो है कई बार डैमेज भी कर सकती है हमारा केस अगर हम सवाल को रिपीट करते हैं. देन then the last thing here is know when to stop. It may undo what you have achieved. So as Justice Sachdeva's example that he gave, that दरवाजे पे, खिड़की पे, उसके बाद चारपाई पर या कुर्सी पर. तो आपको अगर पहला सवाल ठीक मिल गया तो आप वहां से भाग लीजिए. उस डायरेक्शन में दोबारा जाइए ही मत. आपको मिल गया जो आपको चाहिए था. कई बार हम होता क्या है कि हम कहते हैं अच्छा इसने ये बोल दिया, इसको और सीमेंट करते हैं. तो कई लोग हम देखा है पूछते हैं कि आर यू श्योर यू वर देयर एट द डोर. तो विटनेस समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है. तो आर यू श्योर हमें नहीं पूछना है. अगर हमें एक बार जवाब मिल गया तो आप बिल्कुल उस दिशा से निकल के दूसरी तरफ जाइए. वहां पे हमें नहीं रहना है. कहीं और किसी और टॉपिक पे चले जाइए, किसी और चैप्टर पे चले जाइए. क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक ही जाना है. यू कैन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नो टाइम विदाउट हैविंग टू कंप्लीट वन टॉपिक. अगर आपने कुछ अचीव कर लिया है तो उसको वहीं छोड़िए और दूसरी तरफ जाइए. दैट्स इंपॉर्टेंट. देन कई बार एज जस्टिस सचदेवा मेंशन्ड कि विटनेस को कन्फ्रंट करना होता है, उसने पहले कुछ स्टेटमेंट दिया होता है. तो एक टेक्निक है इसको भी इस्तेमाल करने की. थोड़ा आप इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी प्रैक्टिस में तो आप समझ जाएंगे कि इसको कितनी इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हैं. हमने देखा है कई बार प्लीडिंग्स में या अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में विटनेस ने कोई बात एडमिट करी होती है, कुछ बात कही होती है. और ये जरूरी नहीं है कि विटनेस को सब चीजें याद हो, क्योंकि प्लीडिंग्स जो होती हैं वो कई बार तो हम ही बनाते हैं, लॉयर्स बनाते हैं. विटनेस ने तो बनाई नहीं होती. विटनेस और जो पार्टी है उसने तो सिर्फ साइन करा होता है. तो you will find situations where there is a previous statement either in examination in chief or in pleadings made by this witness. और आपको लगा कि अभी विटनेस ने उसी टॉपिक पर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन दिया है, कुछ कॉन्ट्ररी बोला है. तो थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज रखिए, थोड़ा और चलने दीजिए क्रॉस एग्जामिनेशन. एंड देन यू आस्क हिम कि पिछला वाला स्टेटमेंट दिखाइए जो प्लीडिंग्स में है, जो एग्जामिनेशन इन चीफ में है, कि भाई ये देखिए आपने ये प्लेंट साइन करी थी, वेरीफाई आपने ही करा था, जिसमें स्टेटमेंट भी है. तो कहेगा हाँ मेरा ही है क्योंकि मैंने ही साइन करा है. मना तो नहीं करेगा कि मेरी प्लेंट नहीं है या मेरा स्टेटमेंट नहीं है. उसके बाद आप उसको
वहां ले जाइए, वो स्टेटमेंट दिखाइए जो कॉन्ट्रोडिक्टरी है। बोलिए देखिए अभी आपने ये स्टेटमेंट दिया है, तो अब तक वो समझ जाएगा कि हाँ मैंने कॉन्ट्रोडिक्शन करा है। तो ही विल ट्राई and wriggle out of it. But don't worry, because ultimately it is for the judge to see that here is a witness जो contradictory statement बोल रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने तो उसको पहले वाला स्टेटमेंट दिखा दिया, कंफर्म करा लिया कि ये तुम्हारा ही स्टेटमेंट है। देन यू शोन हिम द सेकंड स्टेटमेंट कि भाई ये आपने अभी बोला है। एंड यू जस्ट नीड टू टेल हिम दैट लुक, योर स्टेटमेंट गिवन अर्लियर वाज टू मिसलीड द कोर्ट। Now, you've done your job. उसके बाद court will draw an inference against that witness. You don't have to worry about it. So, we call it 4 C's. Credit, contrast, credit, confirm, contrast, credit, commit, contrast, confront. ठीक है, टेक्निकल बातों में नहीं जाना चाहता मैं। अब कुछ डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट आर्ग्यू विद द विटनेस। हम लोग कई बार बहस करने लग जाते हैं विटनेस से। व्हाई शुड वी आर्ग्यू विद द विटनेस? हमें तो सवाल पूछना है और जवाब लेना है। तो विटनेस के साथ आर्ग्यूमेंट करने में आप अपना फोकस लूज करेंगे। विटनेस हो सकता है थोड़ा क्लेवर हो जाए, उस प्रोसेस में समझ जाए कि आपको क्या चाहिए था जो आपको नहीं मिला, इसलिए आप उससे आर्ग्यू कर रहे हैं। तो प्लीज अवॉइड, डोंट आर्ग्यू विद द विटनेस, डू नॉट इंटरप्ट द विटनेस। कई बार हमें लगता है कि विटनेस जो है हमारे खिलाफ बोल रहा है, इसको ही रोक देते हैं। बट वन, the court will not allow you. Court will say let the witness complete. और दूसरा, I can tell you out of experience, जो विटनेस ज्यादा बोलते हैं वो कई बार आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बता जाते हैं, which will give you further inputs to ask further questions. So let him speak. Let him speak. And third, do not ask for opinion, because विटनेस जो है हम उसकी ओपिनियन नहीं मांग रहे। विटनेस ऑफ फैक्ट है, उसकी ओपिनियन से हमें क्या लेना देना। तो ओपिनियन हमें नहीं चाहिए विटनेस की। एंड विद दैट आई विल एंड माय प्रेजेंटेशन, बट माय रोल इज नॉट ओवर एज येट। सो अभी आप घर नहीं जा रहे हैं। वी हैव विद अस मिस्टर ऋत्विक। आगे हैं आप? थैंक यू। सो वी हैव अ विटनेस विद अस, अ स्टार विटनेस टुडे, मिस्टर ऋत्विक पाराशर। एंड अब मेरी बारी खत्म हो रही है बोलने की, अब आपकी बारी शुरू हो रही है। तो आपके पास माइक है? एक माइक दीजिए। अब हमें एग्जामिनेशन इन चीफ करना है मिस्टर ऋत्विक पाराशर का, और उसका जो पीरियड है वो पिछले 24 घंटे है। सो पिछले 24 घंटे में इनके जीवन में क्या हुआ है, नो पर्सनल क्वेश्चन, इनके जीवन में क्या हुआ है आपको इनसे एलिसिट करना है। आपने देखा, हमने आपको बताया एग्जामिनेशन इन चीफ में डिवाइडेड इनटू टॉपिक्स, टेक्निक है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एटसेट्रा, नो लीडिंग क्वेश्चंस। सो लेट अस सी कि हमने जो अभी डिस्कस किया उसका कुछ असर हुआ या नहीं हुआ। हाँ, तो ऋत्विक जवाब देंगे। आप में से कोई भी सवाल पूछिए कि पिछले 24 घंटे में इनके जीवन में क्या हुआ। कितने केसों में? एक केस में, एक केस में जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में था और 3 नंबर पर फिक्स था। ठीक है, अब somebody else wants to ask a question. Bring it close. All right, I begin with, what is your name at the first place? My name is Ritwik Parashar. And where are you from? I am from Jabalpur. All right. What you've been doing for the past 24 hours, prior to past 24 hours, where were you? So now you've seen, I said divide it into smaller time frames, topics, and you have a question which says, what have you been doing last 24 hours and before that also? So That's a bigger. it's so big Yes. that, even you will not know what the witness will say. So it's important to divide the story into smaller chapters. So 24 hours also has hours, and within hours it has minutes, possibly. And then,
So somebody else, anybody else wants to try? ये मौका रोज नहीं मिलेगा आपको ऋत्विक से सवाल पूछने का. सर मैं आज कोर्ट 9:30 बजे आया था. भाई 24 घंटे में तो अभी 3 सवाल ही हुए हैं. यस यस, पीछे पीछे. मैंने कोर्ट में आकर अपने एजी ऑफिस में जाकर फाइलें पढ़ी. आप देखिए, आप प्रिज्यूम कर रहे हैं इन्होंने नाश्ता खाया था. सो ये सवाल गलत हो जाएगा. एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं आ सकता ये सवाल, क्योंकि आप पूछ सकते हैं कि सुबह क्या खाया था. बिल्कुल. सर सुबह कुछ नहीं खाया. देखिए. थोड़ी डांट खाई थी. नहीं सर, सुबह कुछ नहीं पिया. पानी पिया था. सुबह पानी पिया था. सुबह पानी पिया था. नहीं, आप इंफॉर्मेशन जान रहे हैं. सुबह कुछ पिया था. कुछ पिया था. नो, डिड यू ड्रिंक? नहीं नहीं, डिड यू ड्रिंक. अगर आप पूछते क्या सुबह पानी पिया था तो लीडिंग हो जाता. सो व्हाट वी वांट इज कि इस विटनेस की जिंदगी में पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है, हम एक स्टोरी बना के अगर सामने ले आए तो एंड आस्किंग हिम क्वेश्चंस एज इफ वी आर एग्जामिनिंग हिम इन चीफ. Anything except which is too personal. Like if he is a teacher, See, you asked him his name. He gave his name, right? And then I think you asked one more question. Yeah, and he gave that answer. Then and then you wanted to know 24 hours and before 24 hours. So that became very viral. Yes, पीछे कोई पूछना चाह रहे थे सवाल? कितनी फाइलें पड़ी थी? सर सुबह जिस केस में मैं अपीयर हुआ था वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के सब्जेक्ट पर था. सर सुबह मैंने एक फाइल पढ़ी है. वो तो बता चुके हैं ना, इन्फॉर्मेशन आ गई. एक केस था. एक फाइल पढ़ी. हाँ, क्या पूछ. As per roster, I was assigned cases before Justice Avneendra Singh साहब. पीछे कुछ सवाल पूछ रहे थे. यस, अब एक मिनट माइक पीछे देंगे जरा. एक मिनट, माइक आ रहा है. आप कोर्ट आने से पहले आपने कितने केसेस में तैयारी की? 24 घंटे में एक केस में तैयारी करी थी कोर्ट आने से पहले. कुछ मजा नहीं आ रहा है हमें. आप कुछ भी नहीं इनसे इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं. May I say something? सर केस में तारीख बढ़ गई. केस में डांट पड़ी. आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि केस के लिए फोन आए होंगे, तो ये लीडिंग क्वेश्चन हो गया. देखना पड़ेगा फोन में देखना पड़ेगा. Yes.
we'll come to that. Once we finish this, then the next thing is cross-examination. Sir, when did you get to know that you were the star witness for today's session? I got to know this in the last week. सर लास्ट 48 आवर्स में आप अपने लंच या डिनर को लेके कभी कंफ्यूज हुए हैं कि आप क्या खाएंगे? मैं थोड़ा सा आज के लंच को लेकर कंफ्यूज हुआ। छोले भटूरे थे तो मैं कंफ्यूज था कि खाऊं कि ना खाऊं। एक मिनट। आप एग्जामिनेशन इन चीफ में अपने विटनेस को एग्जामिन कर रहे हैं और उसको झूठा साबित कर रहे हैं। सर एक कोर्ट मिनट, से आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि कल ये कोर्ट आए थे? नहीं, आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि कल ये कोर्ट आए थे, तभी आप पूछ रहे हैं। सो आप ये पहले एस्टैब्लिश करिए कि कल ये कोर्ट आए थे। कल शाम को 6 बजे। कल शाम को 6 बजे मैं एजी ऑफिस में। एजी ऑफिस से निकल के मैं अपने घर गया। घर जाने के बाद तो इसमें देखिए बहुत बड़ा पीरियड दे रहे हैं आप। तो आप कह सकते हैं जब आप घर पहुंचे तो आपने पहली चीज क्या करी? देन यू आर रिस्ट्रिक्टिंग हिम टू अ पीरियड। नहीं, डांट भी खाई हो सकती है। आप प्रिज्यूम कर रहे हैं। हेलो सर, लंच टाइम में लंच करने के बाद आपने क्या किया? सर लंच करने के बाद एक केस में ड्राफ्टिंग करी और उसके बाद ये साउथ ब्लॉक में आ गए। क्या आपकी पत्नी ने आपको डांटना बंद कर दिया? नहीं सर ये तो नहीं सर। सो देखिए, एक ही जवाब है इसका। सो आपने देखा कि जब हम इसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो हमें थोड़ा मुश्किल हो रही है एक टाइम पीरियड में कन्फाइन करना। हाँ, तो इसको जो व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे, आप प्लीज इसको प्रैक्टिस करिए। हाँ, प्रैक्टिस करिए इसको। प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप प्रोफिशिएंट होंगे उसमें। यू कैन आस्क हिम कि भाई क्या आप कल कोर्ट आए थे? हाँ, कल मैं कोर्ट आया था। कितने बजे आए थे? कल मैं कोर्ट 9:30 से 10 के बीच में आया। आप जब कोर्ट में 9:30 10 के बीच में आए तो लिंकिंग द प्रीवियस, तो आप पहले कहाँ गए? मैं अपने एजी ऑफिस गया। एजी ऑफिस में आप कितनी देर बैठे? एजी ऑफिस में मैं 11:30 पौने 12 बजे तक करीब बैठा। तो पौने 12 बजे एजी ऑफिस के बाद आप कहाँ गए? मैं कोर्ट रूम नंबर 21 में गया। तो देखिए, एक स्टोरी बन गई कोर्ट आने से लेके और एजी ऑफिस और उसके बाद जाने की। सो प्लीज प्रैक्टिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू विल बी एबल टू फ्रेम अ स्टोरी विच रन्स कोहेसिवली। ठीक है, अब लेट्स सी द मैजिक ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, जो हम सब लोग शाम को देखते हैं। आज आप देर से पहुंचेंगे, आपका भी होगा सबका क्रॉस एग्जामिनेशन। तो अब पिछले 24 घंटे में इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है, क्या क्या किया है इन्होंने। लेट अस सी अगर हम उस इंफॉर्मेशन को लीडिंग क्वेश्चन के तौर पर इनसे पूछ सकें। हाँ, क्रॉस के लिए नहीं नहीं, एक मिनट, आप क्या चाहते हैं पूछना इनसे? किस बात पे? कोर्ट में तो कहा ही हुए हैं ना ये। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो आप इनको या तो कॉज लिस्ट दिखाइए और बोलिए कि देखिए आपका कॉज लिस्ट में नाम नहीं है। फिर उस बोलेंगे है या नहीं है, बताएंगे आई डोंट नो, पर आपको पता होना चाहिए बिकॉज यू शुड नो द आंसर। फिर आप बोलेंगे देखिए चूंकि आपका कॉज लिस्ट में नाम नहीं है, आप कोर्ट में आज नहीं उपस्थित हुए थे। ठीक है ना? तो जी सर। ये भी बात ठीक है कि आपकी बात से कोर्ट कन्विंस नहीं थी, इसलिए आपकी वैकेंसी
जी सर। जी आप एक मिनट प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये 4 व्हीलर में आए थे। आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि गाड़ी में आए थे, पैदल भी आ सकते हैं। वो आप चीफ में पूछ सकते थे। क्रॉस पूछ रहे हैं तो अभी आपको क्या है, लीडिंग सवाल पूछना है जिसमें आप इनको इंफॉर्मेशन देंगे और ये हाँ या ना में जवाब देंगे। यस तो आपको चीफ में पूछना चाहिए था ना कि आज आप कितने बजे आए थे, कहाँ गाड़ी खड़ी करी थी, क्या वो निश्चित पार्किंग थी, फिर क्रॉस में उसको आप लीडिंग सवाल की तरह से पूछ सकते थे। सर कोई ना कोई दिन तो ऐसे होते होंगे कि आप 9:30 के बाद आते हो या 10 बजे आते हो कोर्ट, या 10:30 के बाद आते हो। लीडिंग क्वेश्चन तो आप एक कोशिश करिए एक ऐसा सवाल पूछने की जिसमें आप इनको आपके सवाल में ही जवाब हो और ये हाँ या ना में उत्तर दें। महीने भर में आप 1-2 दिन तो लेट हो जाते होंगे, हाँ हो जाता। तो क्या वो दिन आपको याद रहते हैं? नहीं याद नहीं। तो आप कैसे डेफिनेटली कह सकते हैं कि कल आप 9:30 बजे आ गए थे, आप शायद लेट आए हो, आपको याद ना हो? मेरे एजी ऑफिस में हम लोग को अटेंडेंस लगाना होता है, तो अटेंडेंस ऐप के माध्यम से लगता है और ऐप में समय रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिस पे आप अटेंडेंस? हाँ जी जी। यस सी पकड़ नो बिफोर दैट आई वेंट 9:45। हाँ आप पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा एक मिनट, मैं इसका ऋत्विक जी, जैसा आपने अपने मुख्य परीक्षाओं में बताया, ये तो सही है कि आपने ये नहीं बताया कि आप सुबह एजी ऑफिस में आके आपने साइन किए थे? नहीं, मैंने कोई साइन नहीं किया। ये सही है कि आप कभी-कभी पढ़ के ही जवाब ये सही है। You can refuse to answer this question. ये सही है। ये सही है। पूछ लो। एक माइक इधर दीजिएगा, सॉरी। हाँ यह बात सही है कि आपने लंच में छोले भटूरे देख के आपको बहुत गुस्सा आया था। ये गुस्सा नहीं आया। नहीं। तो फिर आपने सोचा कैसे कि मैं खाऊं कैसे इसको? कंफ्यूजन हुआ था। कंफ्यूजन हुए थे। एक माइक इधर दीजिएगा। आपको कितनी फाइल मिली थी आज के लिए? सर लीडिंग क्वेश्चन। सो आपको कितनी फाइल मिली थी आज के लिए? कितनी फाइल जो है ये तो ओपन क्वेश्चन हो गया ना। आपको इन्फॉर्मेशन देनी है इनको कि क्या ये बात सही है, आपको 1 2 3 जितनी भी फाइल मिली थी आज। आपने ये बताया, आपने भी अभी इन चीफ में बताया कि आपको एक फाइल मिली थी, बताया था ना आपने? और आपने ये भी बताया कि सबसे पहले आके आप फाइल देखते हैं, घर में नहीं पढ़ते क्या आप? नहीं, घर में पढ़ते हैं। फिर दोबारा देखने की क्या जरूरत? आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है? रिवाइज करना पड़ता है। आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है कि आपको एक फाइल पढ़ने के लिए रिवाइज करना पड़े? अवॉइड रेपिटेशन, मैंने अभी बोला था ना, क्योंकि आपको फेवरेबल आंसर नहीं मिला, आप रिपीट करते जा रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि आपको वो तो विटनेस ने एक बार जवाब दे दिया, विटनेस अड़े गए अपनी बात पर। I think we'll have to request the front row not to ask any questions. ये बात सही है सर। छोले कुलचे गलत। हेलो सर, हेलो,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एजी ऑफिस आते हैं। हेलो, मैं पूछना चाहता हूं कि आप एजी ऑफिस आते हैं तो आपके कहीं हस्ताक्षर होते हैं डेली? सुनाई नहीं दिया, फिर एक बार फिर से बोल दीजिए। हेलो, एक बार फिर से बोल दीजिए। आप दोबारा मैं पूछना दोबारा चाहता बोलिए। हूं कि आप एजी ऑफिस में आते हैं तो आपके उपस्थिति के हस्ताक्षर सीनियर होते हैं? नहीं, हस्ताक्षर नहीं होते हैं ऐप में। तो आप हाजिरी सवाल जो बनाएंगे ये पूछिए कि क्या ये बात सही है कि एजी ऑफिस में आपकी उपस्थिति ऐप द्वारा ली जाती है? जी, उसमें हाँ या ना में जवाब हाँ, आए। ये सही है। कितने बजे हस्ताक्षर किए थे आप? कितने नहीं पूछेंगे, आप बोलिए आपने क्या ये बात सही है कि आपने 10 बजे हाजिरी अपनी मार्क करी? सवाल को आपने हस्ताक्षर कितने बार किए थे? कितने बजे किए थे? आप दस्तखत उपस्थिति के कितने बजे किए थे? 9:30 डेली करते हैं 9:30 बजे? 9 से 10 के बीच में। ओके। हाँ, ये सही है। सो चलिए, आई थिंक आपने थोड़ी प्रैक्टिस करी है। आप आई एम ग्लैड कि आप फॉर्म में आ रहे हैं। तो अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो हमने टेक्निक सीखी है आज, उसको आप अपनी डेली प्रैक्टिस में इस्तेमाल करिए। जब भी आपको एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिले, प्लीज रिमेंबर दीज टिप्स एंड टेक्निक्स। ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में इनकी कॉपी है, आप वहाँ से कॉपी ले सकते हैं जस्ट एज ए रिफ्रेशर। एंड आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू मे बी इन फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ कि ये क्या ये आपको रियली आपसे इससे कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है? सो विद दैट आई वुड लाइक टू वंस अगेन thank Honorable Justice Sachdeva and Honorable Judges of the Court who have given me this opportunity. Thank you. Thank you, Ritvik. Thank you. Thank you, sir, for your valuable and pragmatic insights on the subject. Arriving towards the end of the program, it calls for our expression of heartfelt gratitude towards the honorable dignitaries and guests. May I now, with utmost humility, request my Lord Honorable Mr. Justice Vivek Agrawal to kindly deliver a vote of thanks. Honorable Administrative Judge, Justice Sanjeev Sachdeva Sahab, my sister and brother judges, Mr. Rajiv K. Virmani, Senior Advocate and guest of honor today, who has accepted our invitation and given consent to address us on very interesting topic of examination and cross-examination of witnesses, members of the registry, Shri Pushpendra Yadav, Deputy Solicitor General for Union of India, Shri R.K. Singh Saini, Vice Chairman, State Bar Council of Madhya Pradesh, Shri Dhanya Kumar Jain, President, Madhya Pradesh High Court Bar Association, Shri Sanjay Agrawal, Senior Advocate, President, High Court Advocate Bar Association, Shri Aditya Adhikari, General Secretary, Senior Advocates Council, Senior Advocates, Advocates, Panel Lawyers, friends, ladies and gentlemen. Vote of thanks is one of the most difficult tasks after such an enriching and participative session. A very warm and hearty good evening to all of you. It is both an honor and a privilege to be here today to address such a distinguished gathering of legal professionals who have come together for this important workshop on the critical skill of cross-examining witnesses. As we all know, cross-examination is one of the most powerful tools available to an advocate in the pursuit of justice. It is not merely a formality in legal proceedings, but a vital aspect of the trial process that can often determine the outcome of a case. The role of an advocate during cross-examination is not just to challenge the witness, but to uncover the truth, to test the reliability and consistency of the testimony, and ultimately
to strengthen the cases of their client. Cross-examination is a skill honed through years of practice, study, and observation. It requires balance of a skill, strategy, and ethical responsibility. I think that ethical responsibility part needs some more deliberation because somewhere we tend to miss that aspect. I'm really thankful to Mr. Rajiv Virmani for giving his precious time to be with us and give tips to the practicing lawyers as to how to hone their skills on examination and cross-examination. I'm also thankful to Justice Sanjeev Sachdeva for initiating this workshop on continuing legal education for the advocates. I will be failing in my duty if I fail to acknowledge that not only the lawyers, but we too have learned a lesson or two which will be useful in our discharge of duties. I'm really thankful to you, sir. Looking forward for a very happy and purposive dialogue in future also. Thank you very much. Thank you, my lord. I now invite all the dignitaries and the participants for the high tea. The arrangement for the high tea for the participants has been made in the adjoining corridors and for the dignitaries in the committee hall number 1. Thank you so much. Namaskar.